ओके। कपिल डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ दिख रहा है? कपिल, हेलो। डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ दिख रहा है किसी को? सर यस। यस सर। हाँ, ठीक ठीक, ओके चलो। यस। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ my dear friends. As you know that after a long time I am going to take class on the topic that is the topic 6, which deals about the prevention of money laundering act 2002. And in the short it is well known as a PMLA. In this way we can say that PMLA, that is the prevention of money laundering act 2002. As you know that in your syllabus there are some topics. For example, topic here is that need for combating money laundering's magnitude, prevention of money laundering, definition of money laundering, punishment of money laundering. Today I will discuss these parts, but these parts generally talks about the introduction of these subjects. And here the topic is the enforcement, adjudication, preventive mechanism under the Act. And here there are three leading cases which have been prescribed in your syllabus. These three cases are Ram Jethmalani versus Union of India, Vinod Kumar versus State of Jharkhand 2011, and here Rama Raju versus Union of India. This is the 2011. It means in your syllabus three cases have been prescribed to discuss, and all these three cases have been decided by the Honorable Supreme Court and High Court in 2011. मतलब ये कॉम्बिनेशन देखो कि सारे केसेस 2011 के ही डिसाइड किए गए हैं। तो इस केस को हम तीनों को डिस्कस करेंगे। And as you know that here these are the some other important cases which although are not in your syllabus, but these are the very important and high profile cases. For example, here the Gautam Kundu versus Manoj Kumar, assistant director. Gautam Kundu, here the name is the famous but topic is the different. As you know that we at a time of discussing the section 112 of the Indian Evidence Act, there is a one case also at that time, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जब हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 में लेजिटिमेट डिस्कस करते हैं कि किसका सन है, कौन लेजिटिमेट होगा, कौन नहीं होगा, तो शायद सेक्शन जी के बच्चों को ऑलरेडी मालूम होगा कि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल देते रहते हैं और हमें लगता है कि कपिल शिवम समझ गया होगा कि कौन सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो वहां पे गौतम कुंडू का केस जरूर है, लेकिन वहां का गौतम कुंडू वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, लेकिन यहाँ का जजमेंट है मनोज कुमार वर्सेज असिस्टेंट डायरेक्टर, मनोज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर। आई विल डिस्कस फर्दर। दिस केस हैज बीन डिसाइडेड इन 2015. When it was decided, this was decided in 2015, and this is a very nice judgment, and I will discuss these points. And another recent judgment is that P. Chidambaram, that is the versus direct enforcement. Everyone is well known about Mr. P. Chidambaram. Here, the P. Chidambaram was arrested, and he was arrested in the case of the INX scam case, and he was arrested and he was in jail near about 160 days. And after so many days, he was granted bail by Honorable Supreme Court. That's why here the another case is that P. Chidambaram versus Directorate of Enforcement. This is also very important and important case. And another case is that Muhammad Arif versus Directorate of Enforcement, Government of India. इस केस को हम जबरदस्त जजमेंट कहते हैं, वेरी नाइस जजमेंट, ऑल्दो इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट दिस इज द वंडरफुल जजमेंट। देखिए, जब मैं लिखता हूँ अपने राइटिंग में तो मैं हमेशा हाई कोर्ट के जजमेंट को अवॉइड करता हूँ। मैं मैक्सिमम सोचता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही मैं लिखूं। उसका एक मुझे बेनिफिट ये रहता है कि मुझे हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्च करने में टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से विदिन 2 मिनट्स में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सर्च कर लेते हैं और उसको हम रीड आउट भी कर लेते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट सर्च करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल से बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन फिर भी ये जजमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मोहम्मद आरिफ वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट।
और आप लोगों को लिंक भी दिया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट्स को लिंक मिला होगा। आप ऑनलाइन जो लाइब्रेरी सर्च करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लाइब्रेरी है ऑनलाइन, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। और वहां से एसएससी पर जजमेंट दिया हुआ है, मोहम्मद आरिफ वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, या तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं, या उड़ीसा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर डेट ऑफ जजमेंट आप देख रहे हैं 13 जुलाई, इसको भी डाउनलोड करके, इसके मेथड से डाउनलोड करके आप केस को, ओरिजिनल जजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो हम लोगों के पास 3 केसेस हैं, गौतम कुंडू का केस, पी चिदम्बरम का केस, मोहम्मद आरिफ का केस, ये तीनों जजमेंट में दिखाता है कि 2015 का, 19 का और 2020 का, ये तीनों जजमेंट एटलीस्ट इन तीनों जजमेंट से रिसेंट जजमेंट है। अब रही बात की सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह हमें सिलेबस में कैसे कंप्लीट होगा, कैसे पढ़ा जाएगा, तो बाकी पढ़ने पढ़ाने का चिंता मत क्या करिए, सिलेबस ही है ना, जब चाहेंगे तब खत्म कर दिया जाएगा। तो जरूरत पड़ेगी तो सुबह शाम भी क्लास लिया जा सकता है, मतलब घबराने की बात नहीं है, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही। मैं 2 दिन पहले ही मैं गया था, 30 हजारी कोर्ट गया था, वहाँ पे एक भैया है हमारे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो उन्हीं के पास में गया हुआ था। तो वो हमें बताया कि मुरारी हायर जुडिशरी में जब बच्चे आते हैं, तो हायर जुडिशरी में जैसे उन्होंने जितने 40 सब्जेक्ट का नाम उन्होंने बताया कि हायर जुडिशरी में 40 सब्जेक्ट का मतलब 40 पेपर होते हैं। उनमें उन्होंने बताया कि इसमें जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। मतलब हमारे कहने का मतलब था कि जो जो हमारे डब्ल्यूसीसी के सब्जेक्ट में है, वो सारे पेपर जो है हायर जुडिशरी में डिसाइडिंग फैक्टर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हेल्प कर लेना, मतलब देख लेना। तो इसीलिए हमने सोचा कि जब तैयारी कर रहा हूँ तो अपने बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा और बाकी किसी और के लिए भी काम आ जाएगा। तो ये हायर जुडिशरी के सिलेबस में या सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 2019 में ये इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, जो कि ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। तो बाकी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, लोअर जुडिशरी एक क्लर्कियल जॉब है, एक सम्मान के साथ जीने खाने का एक साधन मात्र है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी रॉयल जॉब अगर आपकी स्टार्ट होती तो हायर जुडिशरी से स्टार्ट होती है। और हायर जुडिशरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं बिना जुगाड़ पाने के, ये चीज होता है। इसीलिए मैं हायर जुडिशरी का हमेशा मैं फोकस करते रहता हूँ, अपने बच्चों को हमेशा बताते रहता हूँ। और दिल्ली में हायर जुडिशरी का ये कंडीशन है कि यहाँ पे मिनिमम एज नहीं है। बाकी स्टेट में मिनिमम एज भी होना चाहिए, बाकी स्टेट में क्या है कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस मिनिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में यहाँ पे 7 ईयर का प्रैक्टिस तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज किसी के पास नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का हम नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कपिल का अगर हम नाम ले लेते हैं, 22-23 साल की उम्र में अगर एलएलबी कंप्लीट कर लेता है, तो समझिए कि 30 साल की उम्र में हायर जुडिशरी का एग्जाम में दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 साल एक्सपीरियंस तो काउंट हो सकता है। और एक बात और, एलएलएम करते समय भी आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी, आप पीएचडी करते हुए भी आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी। तो कोई भी भ्रम में ना रहे कि मैं एलएलएम कर लूंगा तो हमारी प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी, हम पीएचडी कर लेंगे तो पीएचडी काउंट प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी, दोनों रन करेगा साथ साथ में, अब चल सकता है दोनों। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेबस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से भटक गया हूँ, लेकिन फिर भी कभी देने का होगा तो हायर जुडिशरी देना बहुत अच्छा है, और उसमें पेपर बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसीलिए हमने कुछ रिसेंट जजमेंट की हेल्प लेकर के इसको डिस्कस करूंगा, बाकी चीज तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में जो जजमेंट है और आपके कुछ समथिंग न्यू जजमेंट है। तो यार न्यू जजमेंट 3 ही है, लेकिन फाइनल टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें लगता है कि 4-5 केस मैं और ऐड कर दूंगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप ऐड करते रहिए, बस हमसे मत पूछा करिए कि कौन सा केस छोड़ें और कौन सा पढ़ें, क्योंकि हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। हम तुम्हें पढ़ाते हैं मतलब 25-30 एक्स्ट्रा केस, और तुम उसे 10 केस, कुछ केस में से पूछ दो कि सर इस 10 केस जो सिलेबस में दिया हुआ इसमें से कौन पढ़े कौन सा छोड़े। ऑटोमेटिक बात है कि तुम्हें ब्लॉक करना तुम डिजर्व करते हो, तुम ब्लॉक करना ही पड़ेगा। तो हम किसी को पूछते नहीं है, सीधा व्हाट्सएप पर तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तो सोच समझ कर आप व्हाट्सएप किया करिए। आते हैं प्रीवियस ईयर के सिलेबस में, आ जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस में क्या है आपके।
क्वेश्चन क्या है, समथिंग हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। हम लोग का हमेशा ट्रेंड रहा है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ टू सर्च, हाउ टू अरेस्ट एंड हाउ टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। बस इतना ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है, इसमें पनिशमेंट कितना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत किसी प्लेस को सर्च करना हो, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना हो, तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं जहां हम हर लॉ में पढ़ते हैं, वही यहाँ पर भी हमें आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मनी लॉन्ड्रिंग विथ इट्स वेरियस स्टेप्स एंड मेथड। ये क्या कहता है, इसमें दो पॉइंट है। एक पहला मीनिंग है कि डिस्क्राइब मनी लॉन्ड्रिंग, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, this is the first question regarding the meaning of the money laundering. This is the second question is that what is the various steps and methods, mean how money laundering is completed, the meaning and process. For the example, if I proceed further, is that for the example here I will see the process. What is the process of money laundering? Regarding this, I had divided according to the report, what is the process, and according to the Muhammad Arif versus Directorate of Enforcement of Government of India. This is the most recent judgment decided in 2020 by the Honorable Orissa High Court. With the help of these two cases, with these reports and cases, we can say that there are the three parts. For example, according to the report, there are three processes: placement, layering, laundering. लाउंड्रिंग का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा वपड़ा थोड़ा गंदा हो गया, तो क्या करते हो तुम लोग, अपना लाउंड्रिंग के लिए दे देते हो कि भाई साफ उफ करके प्रेस व्रेस से तुम दे देना, एकदम कपिल की शादी में कर चलना है, एकदम बढ़िया से प्रेस व्रेस मार कर क्लीन चिट करके दे दो, उसे लाउंड्रिंग करते हैं। तो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फाइनल जो होता है, इसमें तीन वर्ड होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, लाउंड्रिंग। लेकिन अगर आप बाकी लॉ देखेंगे, बाकी जजमेंट जब देखेंगे, वो कहता है कि तीन स्टेज होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो लाउंड्रिंग यूज वर्ड हो रहा है कमेटी के द्वारा, एक मिनट किसी क्लास है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। विजय पटेल बोल रहे हैं से। हाँ सर, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा बाद में कॉल करिएगा। मेरा सर है कि नहीं? अबे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सुनिंदा मेरा सर पूछ। Point is that here, yes, here the laundering integrations like this point see this. Here the यहाँ पे laundering use होता है और यहाँ पे integration use होता है। So my point is that there is no need to worry. Here the three process you can say that yes, placement, layering. Here you can use the word either laundering or you can use the word integration. There is no any problem. These are the process, and here these process I will discuss with the help of this. See the what is the placement, how money is layered, and how it is integration. Integration or laundering both are the same. Sense is the same. Either you can use the word integration or the laundering. There is no any difference. Purpose and sense both are the same. Here there are three process. First is the placement, second is the layering, third is the integration. But how can we say that these are the process? Because we are not the authority. देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब हम लोग केस पढ़ाना होता है, जब 10-15 यूट्यूब पर आप वीडियो सुनोगे तुरंत पता चल जाएगा कि यही यही चीजें हैं। लेकिन मेन बात आती है कि ऑथेंटिक सोर्स का कौन कहता है, हु इज सेइंग दैट देयर आर थ्री प्रोसेस, हु इज सेइंग, हु इज अथॉरिटी, तब जाकर के हमें सर्च करना पड़ता है और वहीं हमें टाइम लग जाता है। और उसी का देखो रिपोर्ट बताता है, इफ एनीवन से हाउ कैन यू से दैट देयर आर थ्री प्रोसेस, यस आई कैन से दैट on the basis of the 18th report of the standing committee as well as on the basis of Muhammad Ali versus on this particular case we can say that the three process are layering. So my point is that whenever I will start regarding the meaning of the money laundering, regarding the steps and methods, both are totally different things. For the example, what is the meaning of money laundering? How I have to decide what is the meaning of money laundering? Here these are the meaning of the money laundering. ML means money laundering.
with the help of Interpol. What is the meaning of the money laundering according to the Interpol? What is the meaning of the money laundering according to this particular act? PMLA. PMLA means Prevention of Money Laundering Act. Prevention of Money Laundering Act 2000. And what is the meaning of money laundering according to the Standing Committee? According to the Standing Committee on the Finance. In this method, with the help of, here this is the literal meaning, launder means, what is the meaning? With the help of Interpol, everyone knows that the international police, here with the help of PMLA, with the help of 18th report, with the help with the help of these three authorities, we can define the meaning of the money laundering. In this way, if question is that please define the meaning of the money laundering, I have to take help of these things. If question is that what are the process of the money laundering, with the help of these three units, we can say that placement, layering, and laundering are integrations are the process. In this way, you have to concentrate what is the question of the competitive exam. देखो competitive exam हायर जुडिशरी में जब पहुंचते हो ना, वहां पे बहुत ही क्वेश्चन पर ध्यान रखना होता है। सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि जो पढ़ करके आया हूँ वही लिखना है, ना ना, घबरा जाएगा काम। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ देख लिए ना कि हम मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्वेश्चन अलग है, स्टेप्स एंड मेथड्स का क्वेश्चन अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए पर्सन बी अरेस्टेड under the Prevention of Money Laundering Act? Under what circumstances can a person be arrested under the Prevention of Money Laundering Act? For example, if anyone asks how a person is arrested, for that purpose we have to take help of the Section 19. Section 19 says that how a person, in what circumstances person can be arrested. Please give me 1 minute. With the help of 1 minute, I will show the Bear Act. जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा सा पहला क्लास है ना, भोकाल बनाना पड़ता है इधर उधर का। जब एक बार बाउंड्री तय हो जाएगी तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इसको समझने से। फिर तो इसके बाद तुम हमारा गुरु खुदा बन जाओगे। अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सेक्शन 19 थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, आजा भाई। यस, power to arrest. Here there are section 19 talks about the power to arrest. In what circumstances person can be arrested, what is the procedure within here. As you know that the every fundamental rights talks about within 20 hours 24 hours he must be produced. All these things have been mentioned here the section 19. As you know that when I was discussing the unit 6, which means there are 3 questions of this topic. First is the what is the money laundering, what are the various steps and methods, and when a person can be arrested under this particular act. These are the 3 questions, and we have to discuss. Okay, and one thing is more. Okay, wait, I will discuss here the adjudication under the Prevention of the Money Laundering Act. Okay, no need to discuss adjudication. Discuss the law relating to search and seizure, including search of persons under the Prevention of Money Laundering Act. On this point, I wanted to say that during the 2019, uh, in the guidance of under the leadership of Honorable Mr. Modi, this particular law has been totally changed. When it has been totally changed, it has been totally changed in 2019. If you analyze this particular act, that is the PMLA, before 2019 and after 2019, there is totally drastic change between before and after. As you know that when I was discussing Prevention of Corruption Act, at that time I also discussed, especially demarcating line was that before 2019 and after 2019. In the same way, to discuss the PMLA, 2019 is the demarcating line. मतलब ये कहने का मतलब है कि मोदी जी ने
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो या पीएमएलए हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, इन दोनों को 2019 के अमेंडमेंट में 2019 में इतना ड्रास्टिक चेंज कर दिया है कि पूरा बाउंड्री फिक्स हो जाती है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करने को दे दिया जाए, okay, although question is the 2017, but suppose that this is not the 2017, this is the question of 2020, what would be happened? In that particular circumstances, answer would not be complete without discussing the 2019 amendment. It means you have to discuss what were the changes brought by the 2019 amendment. एक कोई आना चाहता है ग्रुप में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सही है तुम सब। On these points we have to discuss this point. Same way the attachment of the property, here you can read the questions, several questions. Here the unknown question is that unknown year. Here these questions might be from the 2016 or 2018. I'm not sure, that's why I did not mention. जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, जो बच्चों ने फॉरवर्ड किया था, उसमें ईयर क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो हमने अननोन ईयर लिख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब 2019 का क्वेश्चन तो श्योर है, मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था। अब 19 का भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2015. In 2015, what was the question? Discuss the money laundering. What was the question in 2015? Discuss the term money laundering. Here the punishment, here something different questions, but here the regarding the meaning of the money laundering, same question was also asked in 2015. See, they describe the meaning of the money laundering. Okay, these are the some previous year question papers. Now I have to proceed further and come to the topic. This is the starting topic from the, this is the introductions of this particular subject. Okay, come to the point. Here the question is that need for combating money laundering. What is the point here is that need for combating money laundering. मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमें संघर्ष करने की क्या जरूरत है, इसको खत्म करने की क्या जरूरत है, इसको what would be effect on the country as well as on the society. If you see your syllabus here, the first point is that need for combating the money laundering. Okay, so now first of all I will discuss need for combating the money laundering. Thereafter I will discuss the money laundering for each and everything. So first of all, come to the need of the money laundering. Here you can say that the money laundering is just like the black money. Here the simple meaning of the money laundering means money laundering is a process. For example, what is the meaning? What is the meaning in the lay words? In that way we can say that money laundering is a process by which black money is converted into the white money. Black money is converted into the white money. So what is the meaning of black money? Black monies are those money which have been earned in illegal way. It may be either by committing the crime or it may be by evading the taxes. It may be either committing the crime or it may be evading the taxes. Suppose that one person wants to kill me. He asked Kapil, Mr. Kapil, if you kill the Mr. Murari, I will give 50 lakh rupees. He will say that okay, no problems. He became ready. And Mr. Kapil killed me. In that circumstances, he got the 50 lakh rupees. Now, whether that 50 lakhs rupees is white money or black money, whether the Kapil can claim that that was the remunerations, whatever he had caused work. No, that is not the remuneration. That is the money which had been earned through the illegal sources. Now that money will be called as a black money. Because why? That has been earned through the illegal manner. Then he has no options how to use the 50 lakh rupees. अगर उसी 50 लाख रुपीस को बैंक में लेकर के जाएगा,
तुरंत बैंक वाला पकड़ लेगा कि भाई अचानक, अभी तो स्टूडेंट थे, अचानक 50 लाख कहाँ से मिल गया, रेट पड़ जाएगा घर पे, मतलब कहीं पर भी, घर पर भी लेकर जाएगा, गार्जियन भी पूछ देगा कि भाई अचानक तुम्हें क्या हो गया कि अचानक 50 लाख रुपया आ गया, बताओ कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, किसको मारे हो, 50 क्वेश्चन है। अब हाउ टू कन्वर्ट दैट ब्लैक मनी into the white money, because unless and until he is not in a position to convert into the white money, it will be problems for him. So that's why such money are called the black money. Whenever he will try to convert that money into the white money, that will be called the मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, जैसे कि टेंटेड अनटेंटेड, टेंटेड का मतलब होता है जैसे दाग उग लग जाता है, कपड़े पर दाग लग जाता है ना, चुनरी में लगा दाग छुड़ाऊं कैसे, तो यहाँ पे छुड़ाने की एक प्रोसीजर है, जो होता है ना, जगदीश सिंह गाते हैं। तो जो दाग लग जाता है और टेंटेड हो जाता है, उस दाग को छुड़ाएं कैसे, तो दाग में छुड़ाने का एक और तरीका है, उसको लॉन्ड्री में दे दीजिए कि हाँ भाई तुम इस दाग को छुड़ा करके मुझे दे देना, तो अब वो ले जाएगा लॉन्ड्रिंग वाला, उसको साफ उफ करके दाग को छुड़ा करके दे देगा। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ हमने इस कपड़े को लॉन्ड्री में भेजा था, अब देखो कितना चमक रहा है, इसकी रंगत ही चेंज हो गई है। तो वहां पे क्या हुआ, आपके टेंटेड क्लोथ्स थे, दैट कन्वर्टेड इनटू द अनटेंटेड क्लोथ्स, जो दाग लगे हुए थे वो दाग छूट गए। तो इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में जो होता है, जो मनी काला होता है, जो दाग लगा हुआ होता है, उसको हम कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको हम सफेद बना देते हैं, उसी प्रोसेस को कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। As you know that there is no book on these topics, I am not getting anything. This is the Corona time. That's why I have written these things in own words. How I have written, I don't know. Please, if it is wrong, inform me. Otherwise, appreciate how I have written. See what would be fact. How it is need to control such types of money. First of all, come to the point. Several times crimes committed for money. कई बार क्या होता है, क्राइम क्यों कमिट किया जाता है, कई बार पैसे के लिए किया जाता है, और कई बार इमोशन भी होता है। जैसे होता है ना कि लव, सेक्स एंड धोखा, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि धोखा खाने की कंडीशन में भी किसी को मार देते हैं। तो वहां पे जब आप मारते हैं तो आपका इमोशन हर्ट होता है, तो वहां पे आप किल करते हैं, दैट इज नॉट फॉर कमीशन ऑफ द मनी। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जहाँ के क्राइम करने के लिए, मतलब पैसा के लिए ही क्राइम होता है, बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो आप जानते भी हैं। The several times crimes are committed for money. Every times, ना every time नहीं लिखा हूँ, several times मतलब कई बार कुछ क्राइम मनी के लिए होते हैं, कुछ इमोशन के लिए होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। मान लीजिए किसी के फादर को जान से मार दिया, अब उसके मारने का टारगेट क्या है, उसके मारने का टारगेट यही है कि वह उससे अपने फादर का रिवेंज ले ले। जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति को लाठी डंडा से पीट पीट करके उसका जान से मार दिया। तो उसके दो बेटे जो थे, गांव में लगभग दोपहर का टाइम था, 12 बज रहा होगा, गर्मी का टाइम था, उसको गांव में ही उसको मतलब कि दोपहर के टाइम में, मतलब डे लाइट में आप कह सकते हैं, उसको पटक करके उसका गर्दन को काट दिए, और काटने के बाद गर्दन को उसको अलग कर दिए, हेड को काट करके लेकर चले गए, बॉडी को छोड़ दिए। तो वहां पे जो क्राइम करते हैं वो मनी पर्पज से क्राइम नहीं करती हैं, वहां पे जो क्राइम होता है वहां पे रिवेंज के पर्पज से होता है। लेकिन कई बार होता है कि भाई आप मुझे पैसा दीजिए, मैं सुपारी जो होता है ना, सुपारी किलिंग, तो पैसे के लिए होता है, बहुत सारी चीजें हैं। सेवरल टाइम्स क्राइम्स आर कमिटेड फॉर मनी। इलीगल बिजनेस ऑफ ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, arms dealings, poaching, adulteration of foods involves collection of huge money in illegal way. Although that is a collection of money, but that is not in proper manner. That is a collection of money in the illegal manner. Sometimes what happens, terrorism and wage war depends upon black money. Terrorism and wage war also depends upon the black money. Why black money? Because about the black money, government has not information. Government has not information who is giving, who is taking, why giving, why taking. No, that's why terrorism and waging war depends upon the black money. In several times
It has been observed that black money is used for winning election and its direct attack on the basic tenets of the democracy. कई बार यह देखा गया है कि नेता लोग जो होते हैं चुनाव के टाइम अपने चुनाव प्रचार के लिए ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक मनी बहुत पकड़ी भी जाती है। आप इस तरह की चीजें आप सबको मालूम होगा, कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा। तो दिस इज द पॉइंट, मतलब ये है कि दिस इज द फॉर द इलीगल ट्रैफिकिंग, drugs, force, elections, waging war, terrorism, all these things. And in that circumstances, it is a direct threat to the Indian economy as well as sovereignty of the nation. It was also observed in the other cases. It leads to bribery. In case of money laundering, government deprives from collection of the taxes. Why government deprives from collection of the taxes? Because as you know that the government has no information. At that time, if government had no information, no one is going to pay the tax. जैसे टैक्स क्या होता है, अगर आपकी इनकम 30 लाख से ज्यादा है तो होगा क्या, मान लीजिए कि आपने जीएसटी दे दिया 18%, आपकी इनकम ज्यादा है, 30% आपने जीएसटी दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया, तो 18% आपने इनकम टैक्स 18% आपने इनकम टैक्स दिया, और सॉरी 30% इनकम टैक्स दे दिया, 18% आपने जीएसटी दे दिया, तो 30 18 48% हो गया। और बैंक ट्रांजेक्शन में भी 2% का चार्ज लग जाएगा, तो टोटल 50% आपको टैक्स देना है। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपया अर्न किया, कितना अर्न किया, 100 करोड़ रुपया अर्न किया, 1 अरब रुपया अर्न करता है, अब उसको 50% टैक्स देना है। तो 100 करोड़ का 50% जब टैक्स देगा तो 50 करोड़ टैक्स देना होगा। जैसे 100 रुपए का 50 रुपए देना हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आदमी 100 करोड़ कमाए और 50 करोड़ टैक्स देना पड़े, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि मैक्सिमम वो प्रयास करेगा कि उसे कहीं ना कहीं टैक्स देना न पड़े। चलिए एक छोटा अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए आप 10 करोड़ कमाते हैं और आपको मैं कहूँ कि 5 करोड़ आप सरकारी खजाना में जमा कर दीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ही, आप अवॉइड करोगे। तो ब्लैक मनी के सब बहुत सारी चीजें होती हैं। इससे क्या होता है, जब ब्लैक मनी होती है तो टैक्स कलेक्टर कलेक्शन नहीं होता, और जब टैक्स कलेक्शन नहीं होता है, इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू taxes, it will hamper for development of nations. For example, government will be unable to provide scholarships. जैसे मान लीजिए कि स्कॉलरशिप बच्चों को कि बहुत सारी चीजें आती हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे पाएगी, सैलरी नहीं मिलेगा किसी को, जो सब्सिडी मिलती है फूड पे, एग्रीकल्चर पे, ऑयल पे, तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो माय पॉइंट इज दैट इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, in such types cases governments are unable to collect the taxes, and in that circumstances it will affect development of the nations. For the example, it will government have no money, so it will not be able to provide the scholarships, salaries, subsidies on food, agriculture, oil, etc. What happened due to for the breaking the chain of the black money, in on 8th November 2016, Honorable Mr. Modi ji declared the demonetization of the Indian currency. Up to what extent it was successful, I am not going on that point, but intention was crystal clear. On the point of intention, there was no doubt. That was an attempt, and as you know that taking attempt and getting success both are totally different things, but this was the efforts. From the above discussion, it becomes very clear regarding need for combating the money laundering. आप लोगों ने ऊपर के डिस्कशन से बहुत ही क्लियर हो गया कि अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकेंगे तो वेजिंग वार, टेररिज्म, इलीगल ड्रग्स, आर्म्स, इस तरह के कई तरह के अपराध बढ़ेंगे, और साथ साथ में गवर्नमेंट के पास टैक्स भी नहीं आएगा। दो नुकसान है, एक तो क्राइम बढ़ रहे हैं और दूसरे गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं है। जब टैक्स नहीं है तो पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो समझ में आया कि नहीं भाई, सही लिखा हूँ? तारीफ को नहीं मारते, किसी काम लायक नहीं हो तुम सब। बहुत बढ़िया है सर। बस बस बस, दिल खुश हो गया। कभी कभार तो कह दिया करो कि बहुत बढ़िया है। मजाक कर रहा हूँ, चलो। नहीं, कोई समझने में प्रॉब्लम होगा तो भाई घबराना मत, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
यहाँ मतलब यूट्यूब का काम नहीं कि 10 मिनट की क्लास लेना है, मतलब काम में दिया गया। मैं सोचा कि हमें साल में 11 लाख की सैलरी आई हुई थी, 11 नहीं 12 लाख की सैलरी है, लगभग एक दिन का 33 रुपया पड़ता है, और 2 क्लास एक दिन में लेता हूँ, तो मान लीजिए कि 1,500 2,000 के आसपास पड़ता है, और ईमानदारी से न पढ़ाओ तो भी गलत बात है। इसीलिए आराम से पढ़ना, पूछना होगा पूछ लेना, क्योंकि तुम्हारे ही फीस पर हम डिपेंड हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं और डिपेंड हैं, ये तुम्हारा राइट है। चलो, तो ये प्रॉब्लम को हमने समराइज भी कर दिया ताकि तुम लोग और आसानी से समझ जाओ। अब इसी प्रॉब्लम को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बिकम अनेबल टू ट्रेस द सोर्स ऑफ सच मनी। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू ट्रेस द सोर्स ऑफ सच मनी, ऑफ कोर्स it is unable to impose the tax, and if it is not in a position to impose the tax, the government of any country run by the taxes. Second point is that it helps illegal activities and commission of crimes. Yes, illegal activities, commission of crime. Finally, it destroys economic condition of the country. Okay. First of all, I will discuss the meaning of the money laundering. Other points, then I will start the other point. Okay. First of all, थोड़ा सीक्वेंस मेरा गड़बड़ हो गया है, मेरे सीक्वेंस में ये आना चाहिए था। पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीएमएलए बताता हूँ, ये एक्ट कैसे बना, कैसे आया, क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक ना, सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कर लूंगा ठीक। Brief history of the PMLA. Everyone knows that if you read the preamble of this particular act, you can get why this act was enacted. Why this act was enacted. But everyone knows that about the Harshad Mehta scam in 2000, in 1992. And as you know that one movie has been released on that scam, and I think that is available on the Max Player. Harshad Mehta scam जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था 1992 ईस्वी में, उस पर एक नई मूवी आई हुई है। अब कौन सी मूवी है थोड़ा सा वो नहीं है, देख नहीं पाया हूँ, लेकिन उस पर है। तो हुआ क्या कि आफ्टर द such times scam in the economic field, it was the big problem for the country. What happened, and at the same times at the international level, General Assembly of the United Nations had also taken some steps. Come to hear the history of this point. Prevention of Money Laundering Bill 1998. This was the period when the Mr. Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister of this country. Everyone knows that he was the Prime Minister for a few days, but the last time since 1998 to 2003, he was the continued PM of this country. It means we can say that the Money Laundering Act was enacted during the regime of Honorable Mr. Atal Bihari Vajpayee. Okay, but when it came into force, during the regime of the Mr. Manmohan Singh. मतलब PMLA को हम अगर हम डिवाइड करना चाहें, तो when it was enacted during the Mr. Atal Bihari Vajpayee, okay, and when it came into force during the regime of Mr. Manmohan Singh. Okay, come to the point. When it was introduced in the Lok Sabha, it was introduced in the Lok Sabha in 1998. When in the August 1998, 4th August 1998, it was introduced in the Lok Sabha. Due to some different opinion among the members of the Lok Sabha, that bill was referred by the Speaker to the Standing Committee on the Finance, which submitted its report on the March 1999 to the Lok Sabha. It means whatever recommendation was made by the Standing Committee, that was inserted in that bill, and again it was presented before the Lok Sabha. It was finally, what happened is that finally bill was enacted on the 17th January 2003. Bill was enacted on the 17th January 2003. एक बात और मैं बता दूं,
जब लोकसभा में बिल प्रोड्यूस होता है और पास नहीं हो पाता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया तो आप सबको मालूम है कहाँ है, क्या करता है। हेलो, बोलिए। हाँ, काम बोलिए ना, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा, ओके सर। In that point here that here point was that yes, जब कोई बिल लोकसभा में पास होता है या पास नहीं हो पाता है और वहां पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वह दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप देख रहे हैं कि बिल का नाम पहला जब इंट्रोड्यूस किया था तो 1998 में था, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया होगा, उसका नाम चेंज हो गया होगा। मतलब फाइनली कई बार ऐसा होता है कि बिल का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन पास जो होने का होता है ईयर समथिंग डिफरेंट होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो जब बिल जब लाया गया था, दोबारा लाया गया था, तो फाइनली हुआ क्या कि पास तो हुआ 2003 में, लेकिन नाम उसका 2002 में ही रह गया। इसका रीजन मैं कभी बाद में बता दूंगा। तो माय पॉइंट इज दैट दिस बिल वाज इनेक्टेड बाय द both the houses on the January 2003. After that it came into force on the 1st July 2005. मतलब आप देख रहे हैं ये इनेक्ट कब होता है 2003 में, लेकिन ये इन्फोर्समेंट कब आता है 2005 में इसको इन्फोर्समेंट किया जाता है, ठीक ना। And it was amended in 2005, 9, 13, 15, 16, 18, 19. But here Mr. Jaram Ramesh had filed a case on that point. According to him, he was saying that he had filed one case before the Supreme Court. I had written that here that it was amended many times, 5, 9, 13, 15, but these amendment will be divided into two parts. First part, this is the bad. When this law was amended in 5, 9 and 13, it was amended through the ordinary law. ऑर्डिनरी लॉ जब अमेंड होता है, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू जब अमेंडमेंट होता है तो उसमें पार्लियामेंट में डिबेट होता है, एंड इफ पार्लियामेंट इज नॉट एग्री दैट अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड। बट एज यू नो दैट आफ्टर दैट when it was amended in 15, 16, 18, 19, all these four times it was amended as a money bill. मैं कह रहा हूं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। जब यहाँ पर अमेंडमेंट होता है, पहले जो अमेंडमेंट हुआ 5, 9 और 13 में ऑर्डिनरी बिल के रूप में अमेंडमेंट हुआ, लेकिन मोदी जी ने एक बहुत ही गलत ट्रेंड इसमें इस्टेब्लिश किया है कि इसको इन्होंने फिनांस मतलब कि मनी बिल के रूप में इसको पास करा दिया है। मनी बिल में पास कराने का फायदा ये होता है कि आपको मालूम होगा कि जब फिनांस बिल और मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंस क्या होता है। दैट वाज चैलेंज्ड बाय द मिस्टर जयराम रमेश बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिजेक्टेड दिस आर्गुमेंट। मैटर इज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैड इशूड notice to the central government just before 6 or 7 days. Supreme Court had issued the notice to the central government and had seek information that on what basis you have amended these laws to the money bill. Okay. Here, as you know that here the Mr. P. Chidambaram has given his argument, and according to the argument, he was saying that before 2015, PMLA was amended on the various occasions, but through the ordinary bills as defined under Article 109 of the Constitution. But whatever, after 2015, the Act has been amended through the money bill. Amendments are going on since this. इसलिए आप देखेंगे, जैसे मैं भी क्या किया था, आपको अमेंडमेंट का नाम लिखना होगा कि किस अमेंडमेंट के थ्रू यह लॉ अमेंड हुआ है। नॉर्मली मैं सर्च कर रहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रैकेट में लिख रहा था कि अमेंडमेंट एक्ट, तो गलत आ रहा था। ये चेंज हुआ है, इसका नाम है फिनेंस एक्ट 2019, फिनेंस एक्ट 2015, फिनेंस एक्ट 2016। मतलब इस तरह से चेंज हुआ है, फिनेंस एक्ट के थ्रू चेंज हुआ है। कहीं पे मैं लिखा भी हूँ, तुम लोगों को मिल भी जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ब्रीफ में हम यही जाकर कह सकते हैं
It was introduced in 1998. It was passed in January in 2003. It was amended several times. Before 2015, it was amended through the ordinary bill. After 2015, or since 2015, 16, 17, 18, 19, it has been amended through the money bill. That's why this has been challenged by the Mr. Ramesh before the Supreme Court. What would be judgment of the Supreme Court? We have to wait. These are the basic law about that points. Question was that why it was enacted. What was the reason to enact this particular law? Reason of the enactment. Why it was enacted? As you know that if you read the preamble of the act, it becomes very clear why it was enacted. It was enacted because in 1990, political declaration and a global program of action was adopted. What was adopted? It means there is a resolution which was adopted, which was passed by the General Assembly. When it was passed in 1990. What is the name? Name is the Political Declaration and a Global Program of Action. Okay. What happened in 1998? In June 1998, again another resolution was enacted, and it was directed to all the members of this convention to enact parliamentary law in their own country. हमारे कहने का मतलब है कि 1990 ईस्वी में जनरल असेंबली ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सेप्ट करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, जिसका नाम है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम। उसमें ये था कि नहीं भाई, हमें मिल करके ब्लैक मनी को कम्बैट करना है, खत्म करना है। बाद में रियलाइज किया गया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ समथिंग मोर करना पड़ेगा। 1998 में फिर से मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग में सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सब लोग मिल करके एक अपने अपने कंट्री में, रेस्पेक्टिव कंट्रीज में एक इस तरह का लॉ इनेक्ट करें पीएमएलए के रिगार्डिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी रेजोल्यूशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर था, इसी रेजोल्यूशन को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी अपने यहाँ लोकसभा में पीएमएलए इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 1998 ईस्वी में। तो इसका एक इमीडिएट रीजन था। आप यह रीजन, आप प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इस एक्ट के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसलिए इनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस डिक्लेरेशन के पार्टी हैं, और इस डिक्लेरेशन के 98 में रिक्वेस्ट किया गया है कि सारे के सारे कंट्री मिल करके अपने अपने डोमेस्टिक लॉ में इस तरह का लॉ इनेक्ट करें। इस पॉइंट को लेकर के हम इसको इनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कंट्री में भी इसको पास किया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन और लेंगे, फिर हम कंप्लीट करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी बातें, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक ना। और आप देख रहे हैं कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि न्यूज में चर्चा में क्यों है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चिदम्बरम जी को अरेस्ट करके जेल में रखा गया। मौलाना साद खंडावली, आप सबको मालूम होगा, तबलीगी कांग्रेगेशन जब हुआ था हजरत निजामुद्दीन में, तो सबको मालूम था कि वहां पे कोरोना का टाइम था, शुरुआती टाइम था। लोग कहते थे कि मुस्लिम बम, तबलीगी बम, कौन कौन बम यूज करते थे। ठीक है, अपना अपना सबका पॉलिटिकल पॉइंट है। उसमें भी आपने देखा होगा कि सारा ठिकरा इस पर फोड़ दिया गया कि नहीं भाई, मुसलमानों की वजह से ही यहाँ पे भारत में कोरोना फैला हुआ है। अब आप भी देख रहे होंगे, इस पर कमेंट मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसी टाइम में मौलाना साहब के ऊपर भी पीएमएलए, इस ईडी ने भी अपना एक्शन कर लिया था, एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया था, और कहा गया था कि मौलाना ने एक जानबूझ करके एक रणनीति के हिसाब से भारत में कोरोना फैलाने के लिए इलीगल वे में पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और वो एक तरह से कि कोरोना आतंकवाद फैला रहा है। तो ईडी ने भी पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड किया हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि पी चिदम्बरम का मामला हो, चाहे मौलाना साद खंडावली का मामला हो, और आप एक और न्यूज देखते होंगे, रिया चक्रवर्ती का मामला है, मिस्टर सुशांत सिंह सुसाइड हो या मर्डर हो, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रिया चक्रवर्ती के मामले में भी आपने देखा होगा कि चाहे सीबीआई हो
चाहे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो, चाहे ईडी हो, ये 3 सेंट्रल एजेंसियां हैं। 3 सेंट्रल एजेंसियां हैं और तीनों सेंट्रल एजेंसी को रिया चक्रवर्ती के मामले में झोंक दिया गया। एकदम सीधा सीधा डायरेक्शन था कि जो करना पड़े आप कीजिए, बस रिया चक्रवर्ती को आपको अरेस्ट करना हो। आपने देखा होगा कि सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा। अब एनसीबी जो ड्रग्स का मैटर था, उसमें किसी तरह से इसको अरेस्ट किया गया रिया चक्रवर्ती को, और एक नया केस इसमें ये भी चल रहा है। ईडी भी अपना एक्शन ली हुई है। ईडी का भी कहना था कि ने करोड़ों रुपया रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के अकाउंट से निकाला है, मिसयूज किया है। आप देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में चाहे चिदम्बरम का मामला हो, मौलाना का हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का हो, ये दिखा रहा है कि इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है और हमें इसको कितने संजीदगी के साथ, कितने सीरियस के साथ हमें इसको पढ़ना होगा, और हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें बहुत सारी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर द टुडे क्लास एवरीवन हु सपोर्टेड दिस पॉइंट। ओके।